what is a business model, right? So business model is basically आपका पूरा product का end to end, how does the entire cost, revenue, money flow कैसे हो रहा है, in simple terms, money flow, talent flow, human resource flow कैसे हो रहा है अपना पूरा system में, है ना? So you guys, it starts right from the time you get raw materials, कहाँ से लाओगे, source कहाँ से करोगे, पैसा कितना लगेगा, उसके लिए human resource कितना लगाना है, वो फिर किधर आता है, how do you process that, what facilities do you need, what infrastructure do you need, उसके बाद उसमें कितना कॉस्ट जाता है, उसके लिए क्या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर उसको सेल करोगे, किसको सेल करोगे, कैसे करोगे, हाउ विल यू रीच आउट टू देम, हाउ विल यू मार्केट, हाउ डू यू मेक योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, व्हेन द कंज्यूमर्स बाय इट, प्राइस पॉइंट कैसे होगा, प्राइस पॉइंट डिसाइड कैसे करोगे, कैसे होगा, आफ्टर यू सेल इट विल यू डू एनीथिंग, बिफोर यू सेल इट विल यू डू एनीथिंग, एक्टिवेशन करोगे क्या जाके कस्टमर पॉसिबल हब्स को, या फिर आफ्टर यू प्रोवाइड विल यू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, इज दैट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल, ये सब सोचना होता है, राइट? एंड इट्स एन एंटायर लूप, right from taking something and selling it, right, and that customer creating most customers for you. That's how it works. So that's your entire business model, your entire system कैसे काम करता है, how does everything flow in that system, raw materials, energy, resources, money, जो भी. Solution space में सबसे ज़रूरी होता है value proposition, जैसे problem space में सबसे ज़रूरी होता है the cause, right, and जैसे in the problem space we have stakeholders, फिर solution space में we have atomic unit, है ना, metrics, ये सब चीज़ें होता है वहाँ पे, right? So here's the thing, you want to first start by talking about what your value proposition is, right? अब value proposition आप कैसे define करोगे? What is the best way to define your value proposition so that it makes sense to you and also to your team and also to everybody who comes in contact with your project? You will be able to make sense when first you make a list of stakeholders. Every stakeholder ना जिसका कुछ भी लेना देना है with your entire project, you make a list of that, and then you try to answer the question, what is in it for them, right? What is in it for your stakeholders? What is, for example, mining वाला example अगर हम लोग लेते हैं, what is your value proposition for the mine workers? What is your value proposition for the mine workers का family? What is your value proposition for government and regulatory bodies? What is your value proposition for the mining administration? Right? There has to be something for everyone. ना कुछ तो मिलना चाहिए फायदा उन लोगों को. If you find a stakeholder जिसको zero फायदा मिल रहा है, right? Make a note of that. You want to diagnose and find out why. Is that stakeholder not important to you? If it's not, that's good. It's fair enough, right? Maybe उसको अभी फायदा अभी नहीं मिल रहा है, but in the future you might want to include that person in as well. है ना? जैसे most e-commerce companies started by building their own stock. अपना ही warehousing, अपना ही चीजें खरीद के खुद ही बेचते थे, right? So they didn't have these vendors back then they figured कि चलो vendors को भी लेते हैं, अपना business model बढ़ाते हैं, let's onboard them as well, and they are going to be able to sell their own products, right? हम लोग warehousing नहीं करेंगे उनका product, छोटे छोटे दुकान जो है किराने का दुकान, वो लोग भी अपना product बेच पाएंगे through maybe an e-commerce service like Flipkart or Amazon. तो उन लोगों को भी onboard किया फिर. It didn't start out initially, but they figured a way to bring them in as well, right? So this is something that you guys have to do. Make a list of your stakeholders. Your key stakeholder will be the person you are addressing in your challenge statement. पहले तो उसके लिए value proposition लिखो. What are you giving? ऐसा क्या दे रहे हो तुम उसको? When you're making a business model, you guys remember that you made a user map journey, which is how your user currently interacts with the system. वो क्या करता है, किधर से करता है, right? So we also have something called the business model loop, which basically shows the entire journey, right? The entire business model of your startup, right from the time कि raw materials कहाँ से मिलेगा. For you guys, your raw material is information. Information is your raw material. मतलब resources, basically. So information is a resource that you need. Volunteers, like community health workers are another resource that you need. Training provide करना है उन लोग को, कहाँ से होगा, कौन provide करेगा? Will you provide it or will you hire a vendor to provide the training? Right? वो decide करना है. फिर वो लोग आएंगे सिस्टम में, मैप कैसे करोगे, सिस्टम काम कैसे करेगा, राइट? हाउ विल रिक्वेस्ट बी सेंड, व्हाट विल योर मोड बी, विल पीपल डू गिव अ मिस कॉल और विल पीपल एक्चुअली कम टू अ सेंट्रल जगह इन अ विलेज वेर यू सेट अप योर एंटायर स्टफ? मोबाइल बनाना है कि स्टैटिक बनाना है, फिक्स बनाना है? हाउ विल दीज कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एक्चुअली फंक्शन? विल दे बी ऑन इंटर्नशिप बेसिस 3 months पे सर्कुलेट होंगे, और विल यू हैव अ फिक्स्ड पर्सन फ्रॉम दैट विलेज इटसेल्फ हु कुड बी ट्रेन्ड एंड केप्ट देयर इंस्टेड ऑफ यू सेंडिंग समवन फ्रॉम द आउटसाइड,
राइट वो डिसाइड करना है. फिर हाउ आर दे गोइंग टू वर्क, हाउ डज द सिस्टम वर्क, व्हेन समवन कम्स अप डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे विल यू चार्ज फॉर दैट डायग्नोसिस, यस और नो, विल यू चार्ज फॉर द मेडिसिन यू गिव, यस और नो, इफ नो कॉस्ट कहाँ से कवर होगा, राइट मेडिसिन का पैसा कहाँ से आएगा, स्टफ लाइक दैट. सो यू कीप ऑल ऑफ दिस इन अकाउंट एंड यू मेक अ बिजनेस मॉडल लूप बेसिकली, राइट फ्रॉम रिसोर्सेज टू डिलीवरिंग, है ना, एंड इवन आफ्टर सेल्स यू डू दैट. नाउ इस बिजनेस मॉडल लूप में होगा क्या क्या. So you understand what a business model loop is, right? And how you have to think about the entire project. जैसे तो आपने एक user map journey बनाया है, वैसे ही आपको एक business model loop बनाना है. Give it a first attempt, right? You do that. But we have to talk about business model में elements क्या क्या होते हैं. What are you going to fill in the first place? Take a notebook and draw this. 6 boxes. ऊपर वाला is empathy. फिर लेफ्ट में फिनेंसेस, राइट में कोलैबोरेशंस, फिर लेफ्ट में लीगल, राइट में अननोन, एंड एकदम नीचे द स्टोरी ऑफ योर स्टार्टअप. So the question is, what is this? This is not exactly a business model canvas, but it is something to help you get started before you jump into a business model canvas, right? Because a business model canvas is very complicated, because it's very detailed, and I'll talk about it in a minute. But before that, what is this exactly, Hannah? So this is basically designed for idea stage startups. If you notice, most of the things here you can fill sitting in the classroom. It is specifically designed for that, because you guys are not in the market yet, so you don't know a lot of factors, but this would be a good place to start, correct? So the first thing that we start is empathy, है ना. empathy में क्या है, तुमने problem space में जो भी research किया है ना, जो भी is your how might be statement, whatever you understand about the problem, basically putting yourself into your customer's shoes, right? What do you understand about the problem, वो उधर डालने का, right? समझा सबको empathy क्या है. How do you empathize with the problem? Put yourself into the customer's shoes. Why are you doing this in the first place? Like why, है ना, वो सब कुछ उधर डालना है. प्रॉब्लम स्पेस के बारे में जितना भी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा, वो जाएगा एम्पैथी में, राइट. आफ्टर दैट we have something called finances. So right now sitting in the classroom, what are the finances that you think possibly you are going to require? Finances कुछ भी हो सकता है, right? फर्स्ट बीटा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, उसको मार्केट करने में, एक नया को फाउंडर लेना है, उसको सैलरी देना है, वो फिनेंसेस, खुद को सैलरी देना है. इफ यू टेल योर पेरेंट्स आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन इन्फोसिस एंड टीसीएस, आई एम गोइंग टू वर्क फुल टाइम ऑन माय स्टार्टअप, व्हाट इज द पर हेड सैलरी दैट यू वांट टू गिव योरसेल्फ मिनिमम, जिससे सस्टेन करना है, कितना दिन सस्टेन कर सकते हो तुम वो पैसा से, राइट? वो सब जाएगा फिनेंसेस में, राइट? उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड कोलैबोरेशंस. कोलैबोरेशंस इज हु डू यू नीड टू कोलैबोरेट और पार्टनर विद टू एक्चुअली लॉन्च द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट. इधर ही बैठ के तुम वो सोच सकते हो. गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, सर्टिफिकेशन एंटिटीज, किसके साथ पार्टनर करना है, राइट? सो दैट यू हैव सम, मे बी यू गाइस कुड पार्टनर विद डॉक्टर्स इन अ रीजन, राइट? कोलैबोरेशंस किसके साथ करना है ना. कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी कोलैबोरेशंस में आएगा. एक्चुअली टेकिंग इन पीपल, ट्रेनिंग देम इन द विलेज, मे बी गिविंग देयर सर्विसेज, वैसा. Then we have legal. What are the legal aspects that you think you could have? Intellectual property right hai kya? Intellectual property, are you guys? I'll talk about all of this in more details, but intellectual property, is there a concern regarding that? ठीक है. Legal में, do you need a legal? Do you have guys have to file any patents or anything of that sort, right? क्या क्या लगता है तुमको? Legal aspects क्या हो सकता है for you guys right now sitting here, है ना? Then we have something called unknowns. Unknowns is basically आपको क्या नहीं पता है या नहीं आता है right now. You guys don't know, you guys do not have medical training. That's an unknown. You have no idea how to deal with that. You guys right now haven't tested it out in the field. You do not have data regarding that. Frequency कितने में काम करता है. That's your unknown. You guys do not know how many stirrups can you make in a day. What is your load? कितना load ले सकता है वो? Maybe if you manufacture more than 500 stirrups in a day continuously per machine, it will break down. So 500 is a limit. You don't know that yet. सब unknown में जाएगा. And the last and most important bit is, what is the story of your startup? Why are you doing this in the first place? So finances में अभी in the classroom आपके पास जो भी दिमाग में आ रहा है ना, cost किधर किधर लगेगा आपके लिए, आपको किस किस में cost actually चाहिए, है ना? Manufacturing cost अगर है, नया talent acquire करने में अगर cost है, company को रजिस्टर करने का कॉस्ट, सब कुछ आता है उसमें. कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली लीगल में भी आएगा. वट एवर यू कैन थिंक ऑफ इज अ कॉस्ट फॉर योर कंपनी राइट नाउ, वो ऐड करो. अब ये हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉसिबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, किधर किधर से आपके पास पैसा आ सकता है. व्हाट काइंड ऑफ मॉडल? सब्सक्रिप्शन मॉडल करेगा क्या लोग? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वैसे ही, है ना, फिल्ट्रेशन बिल वैसा होगा क्या? जो भी आप सोच सकते हो अभी फिनेंसेस, बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, वो सब डालने का. सो ऑन दिस चार्ट, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट,
राइट, की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज एंड की रिसोर्सेज, वैल्यू प्रोपोजिशन को अगर हम लोग सेंटर में लेते हैं, एंड एवरीथिंग ऑन द राइट, कस्टमर रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कस्टमर सेगमेंट्स. सो इफ यू नोटिस राइट साइड में ना एवरीथिंग हैज टू डू विद कस्टमर ऑन द राइट, ठीक है, एंड ऑन द लेफ्ट एवरीथिंग हैज टू डू विद रिसोर्सेज, पार्टनर्स, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, ठीक है, एंड सेंटर में वैल्यू प्रोपोजिशन है. So this is again the same concept, right brain, left brain I had mentioned, right? Right brain controls emotions, creativity, empathy वगैरह. इसलिए on the right of this we have everything that actually deals with raw emotions, raw empathy, customer के साथ direct, ठीक है, and on the left we have material चीज़ें, partnerships, resources, activities वगैरह, है ना, and none of that is going to be possible unless you have money foundation में. पैसा के बिना कुछ नहीं होगा लाइफ में, सीधा बात है. Cool, which is why that is at the foundation. So when we start filling this, obviously we are going to start from the center, which is value proposition. Without that figured out, बाकी सब कुछ sense ही नहीं बनता है, ठीक है. Once we have figured that out, right side पे अपन move करेंगे, because obviously human centered करता है ना हम लोग, human centered design for everything. So we'll start with our customers का सब कुछ figure out करेंगे. Then उसके लिए we will figure out left side में क्या resources चाहिए, activities चाहिए, partners चाहिए, and ultimately in order to do all of that, then we figure out कि cost कितना आएगा और revenue कितना आएगा. That's how you fill it. So basically what is value proposition? It is the bundle, पूरा package होता है, ठीक है, your entire package of products and services, right? Don't just think about your product, think about your entire solution, सब कुछ मिला के. Like with your product, do you also want to focus a lot on customer satisfaction? जैसे Amazon करता है ना, Amazon का product एक ही है, मतलब now they have two obviously, a site and an app, but they also focus on, because they want to focus so much on customer satisfaction, they make sure that the deliveries are on time, must packaging करता है उसका. These are not part of their actual product, which is a site or an app, but they still make it a part of the business model because it's important, है ना. So तुम क्या focus करोगे? What are you going to give your customers? अभी value proposition is going to be about your customers, right? I'm just going to repeat, make sure you have all of them. Newness, performance, customization, getting the job done, design, brand या फिर status, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, convenience या फिर usability. इतना ही है ना सबका? Right. So these are the possible value propositions that you can provide to your customer. क्या क्या आप दे सकते हो? You can provide a combination of them also. चलेगा. Right? So let's pick them one by one quickly and let's just see if we get what it means. तो पहला है कि newness. Right? Newness is simple. ऐसा कोई offering पहले था ही नहीं. You're coming with something brand new into the market. Then nothing exists. ऐसा नया चीज़ है तुम लोग का एकदम मस्त. राइट, व्हेन सेल फोन्स केम, टेलीफोन के बाद जब डायरेक्ट सेल फोन आया था तो वो उसका न्यूनेस था, वैसा कोई प्रोडक्ट कुछ था ही नहीं मार्केट में पहले, राइट. योर, सो बेसिकली न्यूनेस मतलब योर प्रोडक्ट इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इट्स अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, विच इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, न्यूनेस, करेक्ट. देन वी हैव परफॉर्मेंस, सिंपल, right? There might be other existing products, but your product must performance, efficient, optimum performance provide करता है compared to other products, ठीक है. Then we have customization, right, where you actually provide very customized products for your customers, एकदम, ठीक है, उसके हिसाब से आप बना के देते हो, right, very customized solutions, stuff like that, right. So that is customization. Next we have getting the job done. Now getting the job done is very important. Market, I'll talk to you about it. थोड़ा अलग है उसका concept, ठीक है. Next is design. Design is pretty simple, right? The best possible design है ना जो आप ऑफर करते हो मार्केट में. Some clothes and fashion brands, they completely value proposition उन लोग का वही है, हमेशा fresh designs मिलेगा, right? So that's there. Then we have brand or status. Example Apple, right? फोन खरीदो आपको स्टेटस ब्रांड मिलता है उससे अलग, एक्सक्लूसिव हो, and a lot of like say Dolce & Gabbana or maybe really expensive watch brands like Tissot, right? Wearing a watch like that, no, they don't expect students to buy that watch. You give someone a Tissot watch, उसको feel होगा कि वो deserve करता है. Then we have price, makes sense, है ना? Price मतलब you're offering a product at the cheapest price. Then we have something called cost reduction. Cost reduction is not the same as offering something for value for money or cheap price. Cost reduction का मतलब होता है reducing the cost of the customer. Maybe customer एक process पे वो ऑलरेडी दूसरे तरीके से कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है उसका, बट यू गिव अ सोल्यूशन जिससे उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन विच रिड्यूसेस द कॉस्ट फॉर द कस्टमर. एन एग्जांपल इज यू गाइस, राइट? मेंटेनेंस का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा कस्टमर के लिए, राइट? क्लीनिंग क्योंकि ऑटोमेटेड होगा आप लोग का, राइट?
देन वी हैव रिस्क रिडक्शन. रिस्क रिडक्शन कहाँ है? माइनिंग किधर है? यही तो रिस्क रिडक्शन है ना. यू ऑफर समथिंग विच रिड्यूसेस द रिस्क. इंश्योरेंस, रिस्क रिडक्शन उन लोगों का वैल्यू प्रोपोजिशन है. कॉस्ट रिडक्शन का एग्जाम्पल इज a lot of CRMs, right? Customer Relationship Management Softwares like Salesforce, है ना. फिर also a lot of ERPs, Employee Resource Planning Softwares. वो लोग क्या करते हैं? सारा डेटा सब कुछ आपको दे देता है so that you can make decisions faster. It reduces the cost, right? तो आपका operations का cost reduce होता है उससे, है ना. Risk reduction का one of the techniques is service level guarantee, है ना, कि आप ये ले लो 3 साल तक हम लोग आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करेंगे फ्री में, गारंटी, राइट. दैट इज अ वे ऑफ रिस्क रिडक्शन. आप बोल सकते हो अपना वैल्यू प्रोपोजिशन में कि देखो हम लोग प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, आपको 3 साल का गारंटी भी दे रहे हैं कि कुछ होगा तो अपने पे आफ्टर सेल्स. सो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग रिस्क रिडक्शन, राइट. नेक्स्ट वी हैव एक्सेसिबिलिटी. हमें इसका एग्जाम्पल अमेजॉन, right? It's accessible from anywhere. You want to buy a specific product which is only available in Chor Bazaar. You don't have to go to Chor Bazaar. Chor Bazaar will come to you. Then we have convenience या फिर usability, right? So accessibility, how is it different from convenience या फिर usability? Correct? So accessibility deals with how many people can actually access that. Quantity पे वो focus करता है ना? But convenience focuses on the quality of that interaction. So Uber does not focus a lot on accessibility. It focuses a lot on convenience, है ना, usability. But Ola, since it's doing mass market, बहुत लोग को दे रहे, everybody has access to shared cabs, है ना, and cab aggregator services. So it focuses a lot more on accessibility. सबको मिलना चाहिए. So getting the job done में, it's a very interesting example. Sometimes your value proposition is that you don't have to pay as long as everything is working. If it doesn't work, only then you pay. मतलब it's like उल्टा, it's like reverse service level guarantee, है ना. हम लोग बोलते हैं 3 साल तक खराब हुआ तो you come to us and we'll do it for free. यहाँ पे बोलने का कि उल्टा, कि अगर 3 साल में कुछ अभी प्रोडक्ट फ्री में लेके जाओ, 3 साल में खराब हुआ तो अपने पास आने का, and then we'll charge you for it. इतना ही. How does that work? Like so weird. How is it going to actually turn into a business model? So here's the thing. रोल्स रॉयस क्या है ना, रोल्स रॉयस प्लेन के लिए इंजन्स बनाता है, राइट. सो दे कुड एक्चुअली सेल इंजन्स. तो अभी रोल्स रॉयस का कॉन्सेप्ट ये है ना कि हाउ डू दे चार्ज दीज प्लेन्स. तो देखो, दे कुड सेल एन इंजन, राइट, एंड वो इंजन का जितना मेंटेनेंस होता है वो सब का वो लोग पैसा ले सकता है. लेकिन रोल्स रॉयस क्या बोलता है ना, देखो आप लोग चाहते हो कि आप लोग बिजनेस करो, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग बिजनेस करो. लाइक इफ रोल्स रॉयस इज टॉकिंग टू से स्पाइस जेट, राइट, तो दे विल से कि स्पाइस जेट भाई एक काम करो, फ्लाई योर प्लेन्स, ठीक है, फ्लाई इट. एज लॉन्ग एज योर प्लेन्स आर ऑपरेशनल, यू गाइज आर अर्निंग मनी, है ना. सो यू कैन एक्चुअली पे अस फ्रॉम देयर. जब तक आप ऑपरेशनल हो, इंजन वर्क फाइन कर रहा है, वहाँ से हम लोग को पैसा देते रहो. लेकिन जब भी आपका इंजन खराब होता है, हम लोग फ्री में मेंटेनेंस कर देंगे. तो ऐसा क्या हो रहा है, सोच के देखो, जब स्पाइस जेट का प्लेन खराब है, राइट, वो बिजनेस नहीं कमा रहा है, बिजनेस नहीं कमा रहा है तो इंजन रिपेयर करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है. इट्स हैवी, राइट, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग बट यू आर हैविंग टू पे मनी. सो इट फील्स अ लिटिल वियर्ड. तो रोल्स रॉयस बोला देखो आपका खराब टाइम है, कहाँ है भला, कौन करने वाला था इधर, समझ, भला ये तेरा मॉडल है, वो भला करता है. बोला कि जब आप लोग कमा रहे हो पैसा तभी हम लोग को पैसा देना, जब आप लोग का बुरा टाइम चलता है हम आपका भला करेंगे, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, फ्री में कर देंगे, राइट. सो दैट इज लाइक गेटिंग द जॉब डन. सो रोल्स रॉयस इज, सो स्पाइस जेट लिटरली पेज रोल्स रॉयस फॉर बीइंग एबल टू डू इट्स जॉब विच इज फ्लाई. खराब हुआ तो फ्री में मेंटेनेंस. कस्टमर सेगमेंट्स, राइट, अंटिल यू फिगर आउट कस्टमर कौन है, हाउ विल यू फिगर की रिलेशनशिप कैसे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बनाना है, रिसोर्सेज क्या चाहिए. लेट्स फिगर आउट कस्टमर सेगमेंट क्या है एक्चुअली, राइट. कस्टमर सेगमेंट्स के नीचे लिखो मास मार्केट, नीशे मार्केट, सेगमेंटेड, डाइवर्सिफाइड, मल्टीसाइडेड. हाउ डिड वी कम अप विद दीज डिविजन्स, राइट, वो समझना भी जरूरी है. वी डू इट ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड वांट्स and what kind of customers they are, needs, wants and the kind of customer they are basically. हाँ, हम लोग वैसे डिवाइड करते हैं, राइट. But basically on needs and wants. So mass market is basically mass market, सब लोग, ठीक है, ज़्यादा कुछ divisions नहीं है, basically catering to the mass in general. So general public, right? Mass market. Everybody has something or the other to get from your product or service. Second is niche market, right? यहाँ पे niche market. That is, it is for a very specific, a very special category of customer. Segmented is basically you have a certain group of people with similar needs and wants, लेकिन उन लोग को भी तुम थोड़ा divide कर सकते हो. And
प्रोडक्ट एक ही रहेगा लेकिन सब लोग के लिए थोड़ा थोड़ा अलग वैल्यू प्रोपोजिशन रहेगा. लाइक एग्जांपल इज क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बेस्ड ऑन योर इनकम दे चेंज देयर स्कीम अ लिटिल बिट. प्रोडक्ट एक ही है ना क्रेडिट कार्ड, बट बेस्ड ऑन योर इनकम थोड़ा थोड़ा स्कीम उसका चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइड. राइट, डाइवर्सिफाइड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेगमेंट. डाइवर्सिफाइड का भी वही मतलब होता है. डाइवर्सिफाइड का एग्जांपल है Amazon started out as a e-commerce marketplace, correct? But then they thought कि because उन लोग का e-commerce बनाने के लिए they need so much server and computing space and मस्त वो लोग अपना architecture बनाया था. Remember when I was talking about Facebook, I mentioned that they had a lot of problems setting up the server because you had to physically go and plug and set up server space. You couldn't buy it on cloud. तो Amazon क्या सोचा ना कि उन लोगों को since already बनाना है खुद के लिए server और data base के लिए जगह, how about giving some portion of it out to other web companies? Right, so then they started AWS, Amazon Web Services. Right, now you can actually use Amazon का खुद का computing power उन लोग का process, मतलब they have server stacks, right? Not their, like उन लोग का PC नहीं use करते हो आप, Jeff Bezos का laptop नहीं use होता है उसमें, right? But basically the computing capacity that Amazon has, they give it out to startups, so you can rent थोड़ा अपने लिए CPU, storage space वगैरह, and you can use it. तो Amazon is an e-commerce marketplace, but since they already had, वो लोग अपना product बनाते बनाते उन लोग का capacity इतना हो गया कि they could now give to a diversified market. तो now they cater to both buyers, आप like हम लोग जैसे normal लोग, and also web startups जिन लोग को storage server space चाहिए. So that's an example of a diversified market. So multi-sided कैसा? A multi-sided platform has some value proposition for more than one stakeholder. जैसे कि an example is अपना Y Center का जो learning platform है, right? So we have a value proposition for students. You can come, you can learn our courses, you can build your own projects and get connected to mentors, investors, up network, community, सब बन सकता है वहाँ पे. You can get connected, right? We have something for mentors as well, because mentors लोग आके now you have a platform where you can actually get real projects to mentor, build your own profile, be associated with big names, right? If you are somebody from say government engineering college Aurangabad, maybe now you can actually mentor somebody, a group of students who are working on a project from say Drexel University. I'm not comparing two universities, I'm just saying there's so much scope for collaboration. है ना ऐसा. You can give something to researchers as well. They can find data sets. There are startups actually working on the field, getting data. वो सब data researchers के लिए बहुत काम आता है. So data set है researchers के लिए, right? So all of you who are working on platform-based projects, even education projects for that matter, right? You might have something for parents, you might have something for teachers. So multi-sided हो गया. There's something for everyone. अलग-अलग stakeholder के लिए अलग-अलग चीज value तुम provide कर रहे हो. Product एक ही है, value थोड़ा अलग-अलग है for different customers, right? इधर multi-sided में ये है कि your customers are not similar. जैसे segmented में कैसा था कि सब लोग income वाले ही लोग थे, but based on their income just थोड़ा सा अलग हो रहा था, right? your product का जो भी scheme था, but यहाँ पे customers बहुत अलग-अलग है, your stakeholders, but सबके लिए you have a value proposition from one product only. Distribution channel का 5 phase होता है. So let's start with the first, awareness, right? How do we raise awareness about our company's products and services? पहला बात, डिस्कवरी किधर से होगा? कैसे पता चलेगा कस्टमर को कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में जिससे खरीद सकता है कुछ? अवेयरनेस होना चाहिए कस्टमर को. यू नीड टू फिगर आउट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बाय विच यू कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस. द नेक्स्ट फेज इज इवैल्यूएशन. ठीक है, सो इवैल्यूएशन इज बेसिकली हाउ कैन द कस्टमर्स इवैल्यूएट योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट? वो लोग डिसाइड करेंगे ना, उन लोग को पता चला, चलो अभी वो लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे उसको? विल दे बी एबल टू कंपेयर इट समवेयर? जैसे Amazon, Flipkart के अपन करते हैं, वी इवैल्यूएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट? सो इवैल्यूएशन के लिए भी होना चाहिए. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डू फॉर इवैल्यूएशन इज टेस्ट के लिए करते हैं ना अपन, फ्री सैंपल्स है ना, ट्रायल पीरियड, सब इवैल्यूएशन है. ट्रायल पीरियड, सॉफ्टवेयर का ट्रायल पीरियड बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज डिलीवरी, राइट? सो हाउ डू यू डिलीवर इट? चलो ऑर्डर सब हो गया, इवैल्यूएट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अब डिलीवरी कैसे होगा, राइट? हाउ विल यू एक्चुअली डिलीवर इट? ईमेल करोगे, खुद कोई जाएगा देने, है ना, अमिताभ बच्चन आया घर पे दे के जाएगा, क्या करना है? एंड अभी डिलीवरी भी हो गया. नेक्स्ट इज आफ्टर सेल्स. कुछ खराब वराब हो गया तो कुछ है क्या मेंटेनेंस का कि दे के भाग जाओगे? नाम चेंज, ठीक है, अपना कंपनी मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से खरीदा है, ऐसा करना है क्या? हो सकता है. सो थिंक अबाउट इट. सो कस्टमर रिलेशनशिप में ना पहले 3 चीज लिखो, राइट? 3 पॉइंट्स, ठीक है. पॉइंट्स लिखने के ऊपर लिखो मोटिवेशंस, राइट? तो व्हाट आर योर मोटिवेशंस? वन इज कस्टमर एक्विजिशन. कस्टमर रिलेशनशिप बनाना है बिकॉज यू वांट टू अक्वायर कस्टमर्स इन द फर्स्ट प्लेस. सेकंड इज कस्टमर रिटेंशन.
अक्वायर कर लिया लेकिन कंपनी में भी तो रहना चाहिए. व्हाट इफ दे भाग जाए, कंपटीटर का ले ले कुछ, है ना, हो सकता है. एंड द थर्ड इज अपसेलिंग. अपसेलिंग बोले तो बूस्टिंग सेल्स. अपसेलिंग मतलब क्या? यू सेल समवन, लाइक वेब कंपनीज में होता है ना, आप 2 GB स्पेस खरीदते हो, है ना, फिर स्पेस बढ़ जाता है, देन यू लाइक हे यू कैन जस्ट पे हाफ द प्राइस एंड अपग्रेड टू अ 2 GB स्पेस. तो यू अपसेल्ड एन एग्जिस्टिंग कस्टमर. राइट, नाउ राइट डाउन टाइप्स. क्या क्या टाइप्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप्स होते हैं. ये था मोटिवेशंस, राइट, क्यों चाहिए लाइफ. पर्सनल असिस्टेंस, डेडिकेटेड पर्सनल असिस्टेंस, सेल्फ सर्विस, ऑटोमेटेड सर्विसेज, कम्युनिटीज एंड को क्रिएशन. पर्सनल असिस्टेंस इज बेसिकली जो बैंक में बैठा रहता है, आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट, है नहीं लेकिन वो एक्चुअली. एंड डेडिकेटेड पर्सनल असिस्टेंस इज मे बी योर पर्सनल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो होता है कंपनी में. लाइक जॉब इज ओनली टू you know look after your meetings वगैरह, जो scheduling, research, only for you, works under you directly, that's it, nothing else. Cool. उसके बाद है self service. Easy, right? खुद सर्विस कर लो. वेंडिंग मशीन्स, कस्टमर रिलेशनशिप है ही नहीं उधर. सेल्फ सर्विस, जाओ लो पियो मस्त रहो. सी सेल्फ सर्विस में यू एक्चुअली डू एफर्ट, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, जो भी करना है कर लो खुद से, है ना. ऑटोमेटेड सर्विस है, मशीन इज एक्चुअली डूइंग इट फॉर यू, लाइक लिटरली, है ना, डिलीवरिंग इट मे बी. सो ड्रोन से अगर अमेजॉन डिलीवरी करता है ना, दैट इज ऑटोमेटेड सर्विस, नॉट सेल्फ सर्विस. यू डिडंट गो एंड गेट द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज कम्युनिटीज, राइट. कम्युनिटीज क्या है? फॉर योर आपका कस्टमर रिलेशनशिप बनता है बिकॉज देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग दैट, एंड दे ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड फीडबैक, राइट. कम्युनिटी है ऑलरेडी, है ना, तो कस्टमर रिलेशनशिप वैसे बनता है. समटाइम्स कंपनीज, हम सब कुछ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. सो समटाइम्स कंपनीज देमसेल्व्स क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड अ प्रोडक्ट और सर्विस. को क्रिएशन कैसा है? लिनक्स पता है सबको. लिनक्स कैसे बनता है? One person is not sitting and making Linux. You can also contribute to making Linux together. You have an ownership and everybody creates it together. So co-creation जब होता है तब generally community भी होता है. Key activities is next. क्यों? Because until you know कि करना क्या है लाइफ में, स्टार्टअप करेगा क्या, how will you decide partnership किसके साथ करना है, resources क्या चाहिए. रिसोर्सेज से थोड़ी हम लोग एक्टिविटी सोचते हैं, एक्टिविटी से रिसोर्सेज सोचते हैं. अभी की एक्टिविटीज में लिखो फर्स्ट प्रोडक्शन, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद लिखो प्लेटफॉर्म या फिर नेटवर्क. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट. प्रोडक्शन इज वेर यू मेक समथिंग, यू मैन्युफैक्चर समथिंग, दैट्स योर की एक्टिविटी, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, है ना. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेर यू सॉल्व एन एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम. यू कुड डू इट यूजिंग अ प्रोडक्ट, यू कुड डू इट यूजिंग अ सर्विस, करेक्ट. थर्ड इज प्लेटफॉर्म या फिर नेटवर्क, वेर यू एक्चुअली क्रिएट अ प्लेटफॉर्म विच आइदर enables प्रोडक्शन या फिर enables प्रॉब्लम सॉल्विंग. एग्जाम्पल इज फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म दैट enables प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, मीडिया, गेम्स, एप्स. वो लोग प्लेटफॉर्म बना के दिए, फेसबुक खुद बैठ के मीडिया या गेम्स कुछ बनाने लगे अभी टाइम पास, बट इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर अदर क्रिएटर्स कैन कम एंड मेक स्टफ. की रिसोर्सेज के अंडर फर्स्ट, so physical, intellectual, human and financial. So Amazon, Walmart, Flipkart, they have also physical resources पे बहुत dependency है क्योंकि उन लोगों को warehouses बनाना पड़ता है storing के लिए, right? So that's also a way of physical, right? Next क्या है अपना? Intellectual. So software companies, right? And all of you working on apps and stuff like that, you need a lot of intellectual resources. Like you guys will need people with medical expertise. That's an intellectual resource that you need. है ना. वैल्यू प्रोपोजिशन में भी वो डाल सकते हैं अपन कि इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. लाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑफर ऑन डिमांड लॉयर्स, है ना, तो वो ऑन डिमांड इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं. तो वो लोग वैल्यू प्रोपोजिशन में भी लिख सकते हैं कि हम लोग इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज ऑन डिमांड प्रोवाइड करते हैं. वैसा ह्यूमन रिसोर्स, सिंपल, राइट. You need a lot of people to make something happen. Like if you start a school, you would need human resource, right? So that is obvious, है ना. Next is financial. ये तो सबको चाहिए थोड़ा बहुत लाइफ में, right? But here's the catch. Wherever you can bootstrap ना, we will have to look at ways of bootstrapping. So we'll discuss that as well. हम लोग को हमेशा लगता है कि funding चाहिए लाइफ में, but it's not necessarily so. You can actually start bootstrapping and making things without funding. What are the different types of partnerships अभी, ठीक है? पहला वाला is स्ट्रैटेजिक अलायंस है. अलायंस क्यों बोल रहे हो तुम उसको? बिकॉज तुम लोग आपस में लाइक कम्पीट नहीं करते हो, राइट. सो मे बी उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो तुमको चाहिए, तुम्हारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो उसको चाहिए, तो साथ में अलायंस कर लो, दोनों का कॉस्ट रिड्यूस हो गया, पार्टनरशिप बढ़ गया, ज़्यादा मार्केट साइज दोनों को मिल गया, मस्त. लाइक फॉर एग्जाम्पल
these solar panel cleaning का project में, right? You could, if you partner up with maybe solar panel manufacturers, है ना, competitors नहीं है ना, वो लोग तो solar panel बनाते हैं, तुम तो cleaning device बनाते हो, लेकिन अगर तुम लोग alliance कर लिया ना, तो market size बढ़ गया तुम्हारे लिए, and उसके लिए भी एक value proposition extra मिल गया, ऐसा. That is strategic alliance, right? Second is where most of you will have doubts, that is cooperation, right? How can you cooperate while also competing? है ना, कैसे कर सकते हैं? So an example would be, ये पता है ना, Motorola phones and Android का story. You know what Motorola is for Google? तो ऐसे Google when they were making the Android OS, they were like हम लोग को testing के लिए कुछ करना है, right? So जो क्या है, testing करना है. So the team they said कि fine, we have a phone for you. तो बोला कौन सा phone खरीदा? बोला phone नहीं खरीदा, company खरीदा, Motorola. Right? Motorola phones were actually, the company was direct, right? उन लोग को लिया गया था क्योंकि सारा Android का testing उन लोग के phones पे होगा. Which is why most Motorola phones have a very stock Android on them. ज़्यादा कुछ रहता नहीं है. Samsung का Android is very difficult बोलो, very different from Motorola का Android, because Motorola का Android is very similar to Nexus का Android, है ना? Because Nexus is Google का अपना device and Motorola is the device where it is tested usually, है ना? अभी वैसा नहीं होता, अभी तो stable हो गया, but initially वैसे हुआ था. So if you think about it, Motorola and Nexus are competitors actually, but तो क्या होगा, थोड़ा बहुत cooperation कर ही सकते हैं, इधर testing करने का मस्त, ये लोग भी बेचेंगे, हम लोग भी बेचेंगे, compete भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में. समझा क्या? ऐसा तो you can cooperate even between competitors. तीसरा क्या है? Joint ventures to develop new businesses. So this makes sense, right? दो अलग अलग कंपनी जो अलग अलग चीज करते हैं, जॉइंट वेंचर बना के एक नया कंपनी चालू करे, एक नया बिजनेस चालू करे अपना खुद का, राइट? कंप्लीटली डिफरेंट, टू डिफरेंट सेक्टर्स एकदम, ठीक है? यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ जॉइंट वेंचर, राइट? एंड व्हाट इज द लास्ट? बायर सेलर इज सिंपल, है ना? वेंडर ले लो जो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट, रिलायबल, उसको एक्सक्लूसिव वेंडर बना दो, अपना चीप में प्रोडक्ट मिलेगा, उसको भी होलसेल प्राइस में बिक जाएगा मस्त, and then you can use those supplies to actually carry forward तुम्हारा जो भी process में next step है. Why do we need key partners, right? What are the motivations for partnerships? So लिखो motivation. पहले वाला था types, अभी होगा motivations. What are the motivations for partnerships? So first है optimization and economy of scale. Second है reduction of risk and uncertainty. उसके बाद लिखो acquisition of particular resources and activities. पहले वाला देखते हैं, optimization and economy of scale. इसका मतलब very simply put, it makes no sense for you to own everything. Why will you reinvent the wheel, है ना? कोई कुछ अच्छे से कर रहा है, उसके साथ partnership करो, make use of that so that you can move forward, right? There is no point for you to actually build everything from scratch, own every resource. कोई sense नहीं बनता है उसका, क्योंकि तुम scale नहीं कर पाओगे as a company, right? So it makes sense अगर किसी के पास कोई रिसोर्स अच्छे से फिगर्ड आउट है, किसी के पास कोई you know maybe knowledge है, whatever out there, it makes sense to use it, right? So उससे तुम scale कर सकते हो. So that is optimization and economy of scale. Second is risk reduction and uncertainty, right? Risk reduction and uncertainty. For example, for the project इधर जो अपना bike ignition system वाला है, right? If you actually partner up with the bike vendors themselves, तो तुम्हारा risk and uncertainty कम हो गया, because now you know that every bike के साथ, Honda का every bike के साथ your ignition system will be sold, like your ignition lock system. So उसमें risk कम है, तुमको पता है कि कम से कम पार्टनरशिप कर लिया Honda के साथ, अपना हर बाइक के साथ बिकेगा, कम से कम इतना तो बिकेगा ही, तो it reduces your risk ना in the market. So that's how it works, right? The third is acquisition of particular resources and activities, right? इसमें क्या है? You want to acquire, literally you want to acquire another resource or somebody doing some activity, you want to acquire it. Acquiring is not the same as a partnership. समझा क्या? Acquire में you have ownership on that. You're not just using their product or service, you actually have sort of ownership on that. So that is another way of partnering up, right? Cost structure दो types के होते हैं. एक है cost driven, दूसरा है value driven, right? So basically this is like you can have two kinds of business models based on your cost structure. एक है cost driven business model, एक है value driven business model. Cost driven business models look at optimizing cost, ठीक है? सबसे कम पैसा value for money में कैसे तुम पूरा कर सकते हो. So you look at optimizing costs wherever possible. खर्चा कम होना चाहिए,
ठीक है. वैल्यू ड्रिवन, they overlook costs to focus on value. You should create maximum value, like luxury cars, luxury hotels, right? उधर cost थोड़ा ज़्यादा होता है, setup का भी cost ज़्यादा है, बेचने का भी cost ज़्यादा है, right? The price point is high, but maximum value create करते हो. Apple is value driven, not cost driven, right? The say Xiaomi phones are cost driven. What are the different types of costs that you can have? पहला लिखो fixed costs, ठीक है? Second is variable costs. Third is economies of scale. So next is economies of scope. So let's take one by one. Fixed cost क्या है? They are costs that remain the same. कितना भी business कर लो, life में कुछ भी कर लो, उखाड़ लो, right? Anything happens, TEDx में talk दे दो, innovation award मिल जाए, Nobel Prize मिल रहा है, वो cost same ही रहना है. Example, salaries of employees, right? Fixed cost है वो, उतना तो देना ही है ना. What are variable costs? When you're launching new into the market, marketing का cost थोड़ा high रहता है. Once you're doing good, अच्छा खासा presence है, marketing cost decrease हो जाएगा, depending on your volume of business. So that is a variable cost. If you are a company that does a lot of business, बहुत volume of business है, 1000 लोग के लिए कुछ खरीदना है, तो तुम wholesale में खरीदोगे, तो तुम्हारा per unit cost decrease हो जाएगा ना, because every unit will buy it at less price because you have a lot in quantity to buy. But if you are a smaller company and you have very small narrow number of like customers, segment बहुत छोटा है, तो your per unit cost ज़्यादा होगा because the raw materials that you purchase or whatever you do थोड़ा ज़्यादा price में खरीदना पड़ेगा because wholesale का concept नहीं apply हो सकता है वहाँ पे as efficiently as large orders पे. So economies of scale. Next is economies of scope. Scope increase करना मतलब it's almost like when you move from say a mass market into a diversified customer segment, है ना, तो फिर तुम्हारा scope बढ़ गया ना. Now you were only selling to people who wanted to buy like merchandise, है ना, बुक्स खरीदना था, टी शर्ट, जीन्स, उन लोग यूज़ कर पा रहे थे तुम्हारा सर्विस. लेकिन अभी तुमने अचानक अमेजॉन वेब सर्विसेज भी चालू कर दिया, अमेजॉन प्राइम भी चालू कर दिया. सो नाउ पीपल हैव अदर सर्विसेज दैट दे कैन टेक फ्रॉम यू. तो तुम्हारा स्कोप बढ़ गया, तो उसके साथ थोड़ा कॉस्ट भी इंक्रीज होता है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स. द फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज एंड दूसरा इज रिकरिंग रेवेन्यूज. ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज इज बेसिकली वन टाइम पेमेंट से जो पैसा आता है वो. Recurring revenue is if you provide a service जो value proposition में है, जो बार बार वहाँ से पैसा आएगा, right? Subscription models work on recurring revenue, right? जैसे मान लो Netflix एक महीने के लिए लिया, फिर से subscription renew करो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी. Like घर का इंटरनेट is recurring revenue, है ना. इंस्टॉलेशन पे थोड़ा पैसा मिलता है, फिर हर महीना या जो भी प्लान के हिसाब से रिचार्ज करते रहो, पैसा आते जाएगा. एंड ट्रांजैक्शन इज वन टाइम, गया एक गाड़ी खरीदा, बस हो गया, खत्म, पैसा मिल गया, end of story. Transaction revenue, correct? Ways of generating revenue streams: asset sale, usage fee, subscription fees, lending or renting or leasing, उसके बाद licensing, उसके बाद brokerage fees, उसके बाद advertising, right? So what are these basically? These are ways in which you can generate revenue for your company, ठीक है? So let's look at it one by one. Asset sale is you have an asset, your company has an asset, you sell it and you get money. जैसे योर कंपनी मेक्स कार्स, तुम्हारे कंपनी के लिए एवरी व्हीकल इज एन एसेट, तुम वो व्हीकल को बेचो, पैसा मिला, खत्म. सो एसेट सेल, यू सेल योर एसेट, यू गेट मनी, सिंपल, राइट. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड यूजेज फी. होटल्स, फ्लाइट्स, बेस्ट एग्जांपल. फ्लाइट लो, टिकट का पैसा दो, उतरो, खत्म बात. जितना बार यूज़ करो उतना बार पैसा देना है, राइट. सो दैट्स यूजेज फी. नेटफ्लिक्स इज सब्सक्रिप्शन, बट prepaid phones and postpaid phones are also subscription, not usage. Here's why. I know that it's called usage bill वगैरह, but it's not. I'll tell you why. There's one word which makes a difference. The one word is loyalty, right? Subscription model में क्या होता है ना, बार बार you subscribe to the same service. Like if you take a flight, आप एक बार Jet Airways से जाओ, फिर से SpiceJet से जाओ, फिर से Indian Airlines में जाओ, right? Indian Airlines is not trying to maximize कि नेक्स्ट टाइम भी आप हमारा ही फ्लाइट लेना पड़ेगा, लाइक उसका कोई वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है. बट नेटफ्लिक्स का है. लुक डूड, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग सीजन 2 ऑफ नार्कोस, सीजन 3 तो नेटफ्लिक्स पे ही है, तो किधर देखोगे, नेटफ्लिक्स पे ही आ जाओ, राइट. सो इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल बिकॉज यू कीप रिन्यूइंग द सेम सर्विस, है ना. यूजेज में क्या होता है पता है, यूजेज में पीपल फोकस ऑन क्वांटिटी, कि जितना हो सके लोग शुड यूज आर लाइक सब हो सके सब लोग एक ही बार यूज करके भाग जाए. बट 7 बिलियन पीपल है अर्थ में यूज करने के लिए, टेंशन नहीं है. सब्सक्रिप्शन मॉडल में कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड यूजेज मॉडल में कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट.
सो सब्सक्रिप्शन अगर है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिटेन करें, तभी ना वो लोग बार बार बिल भरेंगे. थिंक अबाउट इट, वोडाफोन, इफ यू हैव अ पोस्टपेड कनेक्शन, राइट, सब्सक्रिप्शन हुआ ना, बिकॉज एवरी टाइम यू विल बी रिचार्जिंग वोडाफोन ओनली. ऐसा नहीं कि इस महीना वोडाफोन कर लेते, चलो नेक्स्ट महीना एयरटेल करेंगे, तीसरा महीना BSNL, अभी चलो फिर से वोडाफोन करते हैं, ऐसा नहीं होता है. इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल. सो द नेक्स्ट इज लेंडिंग और रेंटिंग और लीजिंग. लेंडिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं है. तो यू रेंट समथिंग, अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, एंड यू पे फॉर इट, एंड यू कीप पेइंग अंटिल द प्रोडक्ट एंड अ सर्विस इज इन यूज विथ यू. जब तक है तब तक पे करो, खत्म तो पैसा नहीं देने का. कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्ग टर्म अगर तुम दे रहे हो तो वो लीजिंग हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, राइट. सो हाँ, तो लीज का पैसा कभी कभी मंथली नहीं मिलता है, लीज का पैसा कभी कभी ईयरली मिलता है, कभी कभी डाउन पेमेंट मिलता है, एक ही बार में ले पैसा 10 साल के लिए, ये प्रॉपर्टी मेरा है, ऐसा भी होता है. लाइसेंसिंग में क्या होता है, व्हेन यू लाइसेंस समथिंग यू होल्ड सम कॉपीराइट, रूल्स होता है उसको यूज करने का, राइट. यू कांट जस्ट डू वट एवर यू वांट विद इट. लाइक अगर आप फ्लैट रेंट पे लेते हो ना, रेंट अग्रीमेंट आपके नाम पे बनता है, बिकॉज 11 महीने के लिए आप ओनर हो फ्लैट का, right. So people don't know this, but people so if you're taking a flat on rent, there are laws to protect you. You can't just be thrown out of your house. पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दोगे, रेंट अग्रीमेंट अगर है तो इशू हो जाएगा, राइट. आपको थोड़ा राइट, यू कैन कॉल इट अपना घर, ये मेरा घर है, हाँ ओनर को और है, बट रेंट पे रह रहे हो ना, सो यू हैव प्रोटेक्शन, यू यूजिंग दैट एज योर हाउस, यू कैन डू वट एवर यू वांट, है ना. कुछ भी कर सकते हो इधर, थोड़ा वॉल चेंज जो भी करना है कर सकते हो, राइट, अगर वो डील रहता है ओनर के साथ. लाइसेंस में you are licensing the software or the house or whatever for a particular use, so there are restrictions there. तो ओनर बोलेगा नहीं, अगर पार्टी करना है करो, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए हर बलून में, तो वो लाइसेंस हो गया, राइट. अपना ब्रांडिंग दिखना चाहिए, मेरा घर है, कभी मत बोलना तुम्हारा घर है, मेरा घर है, समझा ऐसा. सो लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर में भी वही, यू लाइसेंस अ सॉफ्टवेयर बिकॉज यू कैन यूज इट, बट द कॉपीराइट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर स्टिल स्टेज विद द पर्सन हु मेड द सॉफ्टवेयर, सो वो लाइसेंसिंग है, राइट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो उससे क्वालिटी कंट्रोल होता है, यू हैव आउटकम कंट्रोल होता है, अपना ब्रांडिंग रहता है, ऐसा टाइप का. सो दैट्स हाउ लाइसेंसिंग इज डिफरेंट. सो ब्रोकरेज फीस इज बेसिकली कमीशन. आप अगर मिडिल मैन हो कमीशन मिलेगा, सिंपल है. फ्लैट ब्रोकरेज फीस लेता है, आपको फ्लैट दिखाता है, कनेक्टिंग सप्लाई विद डिमांड एंड टेकिंग कमीशन. मिडिल मैन न्यूज़पेपर्स वैसे काम करता है, एड स्पेस बेचो, लोग एडवर्टाइज करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, राइट, इन योर प्रोडक्ट यू कैन. सो फिल्म्स में प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है ना, है ना, हीरो मस्ट फाइट कर रहा है, बीच में वो रेड बुल पी लेता है, ठीक है, बोलते हैं मेरे को एनर्जी रेड बुल से आता है, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, रेड बुल. कूल. इधर Amazon का वैल्यू प्रोपोजिशन है प्राइस एंड कन्वीनियंस. Amazon वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द मार्केट प्लेस, ठीक है. तो क्या क्या उन लोगों का वैल्यू प्रोपोजिशन है, प्राइस में बहुत सारे ऑप्शंस एंड लो प्राइस में वैल्यू फॉर प्रोडक्ट मिलेगा मस्त, लेस देन व्हाट यू कैन बाय इन रिटेल. एंड सेकंड इज कन्वीनियंस, घर पे बैठ कर देख के ऑर्डर करो, दुकान जाने का बारिश में जरूरत नहीं है, राइट. प्राइस एंड कन्वीनियंस. नेक्स्ट हम लोग क्या फिल करते हैं, कस्टमर सेगमेंट, है ना. सो कस्टमर सेगमेंट इन लोगों का क्या है, मास मार्केट, सिंपल, ठीक है. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. इन लोगों का क्या है, Amazon.com द साइट, मोबाइल एप्स एंड अदर रिटेलर्स, राइट. Amazon से एक्सक्लूसिव Amazon रिटेलर्स इज वेल, ठीक है. अच्छा, अभी जो पिंक कलर का स्टिकी नोट्स है ना यहाँ पे, दोज आर अबाउट किंडल, वो किंडल का है, ठीक है. येलो वाले इज अबाउट Amazon द मार्केट प्लेस, पिंक वाले स्टिकी नोट्स आर रिगार्डिंग किंडल. तो वो जो अदर रिटेलर्स लिखा है ना, दैट इज अदर रिटेलर्स सेलिंग ई बुक्स सेल किया या EPUB सेल किया तो किंडल में पढ़ सकते हो, वो चलेगा ना. किंडल वाला बुक कहीं और पे भी बेचा, अगर कोई किंडल वर्जन बेचते हैं ना बहुत लोग, तो यू कैन रीड इट इन योर किंडल, दैट इज वाई वो पिंक में लिखा हुआ है अदर रिटेलर्स, राइट. नेक्स्ट क्या फिल करते हैं अपन, कस्टमर रिलेशनशिप. सो कस्टमर रिलेशनशिप में एक है सेल्फ सर्विस और दूसरा है ऑटोमेटेड सर्विस. दोनों है इन लोग का. सेल्फ सर्विस बिकॉज यू गो प्लेस एन ऑर्डर एंड बाय स्टफ. ऑटोमेटेड बिकॉज ऑर्डर्स आर इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड बाय ड्रोन, है ना, वो भी होता है. सो ऑटोमेटेड भी है, वो डिलीवरी इज ऑटोमेटेड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट. व्हाट डू वी फील नेक्स्ट, कस्टमर रिलेशनशिप के बाद क्या फिल करते हैं, की एक्टिविटीज, राइट. सो की एक्टिविटीज है इन लोग का प्रोडक्शन एंड डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग. सिंपल, राइट. मर्चेंडाइजिंग, स्टॉक बनाओ बेचो, एंड प्रोडक्शन एंड डिजाइन इज फॉर किंडल, पिंक में है वो, ठीक है. प्रोड्यूसिंग ई बुक्स एंड डिजाइनिंग देम वगैरह वगैरह जो भी आता है, राइट, सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, ठीक है. उसके बाद क्या फिल करते हैं, की रिसोर्सेज, राइट. की रिसोर्सेज फॉर Amazon इज फिजिकल वेयर हाउसेज, इट्स अ रिसोर्स, आपको सारा सब कुछ वहाँ पे डालना है वेयर हाउस में एक्चुअली में. And another resource is human web and application development.
राइट, तीनों, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए डिलीवरी के लोग वो चाहिए, राइट, टू हेल्प विद द एंटायर वेयर हाउसिंग एंड स्टफ, एंड वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज अ की रिसोर्स जहाँ से पीपल आर इंटरेक्टिंग विद योर प्लेटफॉर्म, एंड फॉर किंडल इट इज इंटेलेक्चुअल रिसोर्स विच इज योर किंडल प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, सो वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में आता है, करेक्ट, इट्स नॉट अ फिजिकल रिसोर्स, है ना. सो की पार्टनर्स नेक्स्ट है इसके लिए. तो की पार्टनर्स क्या चाहिए अपने को, सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के साथ वी नीड अ पार्टनरशिप. We need a partnership with network of sellers, people who are actually selling, right? And also for Kindle we need publishers. Like if you are a writer, Amazon would want you to publish for Kindle, है ना. So that is publishers, है ना, right. And also Kindle will want to tie up with say major publication houses like say Oxford Press या ब्लूम्सबरी, कि उन लोगों का हार्ड कॉपी में जो बुक है उसका एक किंडल वर्जन भी निकालो, हम लोग निकाल के दे रहे हैं, आप पार्टनरशिप कर लो हमारे साथ, है ना. वैसे फिर आते हैं अपन कॉस्ट स्ट्रक्चर में. कॉस्ट स्ट्रक्चर में इसका कॉस्ट ड्रिवन है पूरा, है ना, वैल्यू ड्रिवन नहीं, कॉस्ट ड्रिवन है. Amazon focuses on giving you the best options at the same price or lower prices, पूरा कॉस्ट ड्रिवन है उन लोग का. एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. They want to cater to more and more cities, have more and more products, have a wide range of options, discounts, जो भी sale वेल सब कुछ. So it is cost driven and follows economies of scale. Revenue stream में क्या क्या, कहाँ से पैसा आएगा, retail sale से पैसा आएगा normal. Commission on reseller sales. Reseller होता है ना, refurbished phones मिलता है उधर, resellers you get a lot of them, तो reseller sales से commission आता है. प्राइम मंथली सब्सक्रिप्शन, Amazon प्राइम पे मंथली सब्सक्राइब किया तो वहाँ से भी मंथली पैसा आता जाएगा irrespective of whether you are buying something or not. क्लियर. एंड किंडल के लिए क्या है, ई बुक्स एंड कंटेंट बेचो पैसा मिलेगा, है ना. सो दिस इज बेसिकली द बिजनेस मॉडल फॉर Amazon फ्रॉम अ वेरी जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट. सो हमेशा बिजनेस मॉडल फिल करने से पहले ना look at all the information that you have now, है ना, what are the different type of cost structures, what are the different types of key activities जो भी, and decide करो कि तुम्हारा स्टार्टअप क्या क्या करता है इससे. फिर स्टिकी नोट चिपकाओ सबका, फिर और डिटेल्स में जाओ, right? Who do you have to partner with? All of this, where will you get it from? You did a SWOT analysis, right? Failure mode analysis से भी resources का पता चलता है, key resources, resource hungry अगर तुम्हारा startup है, कौन से resources में सबसे ज़्यादा dependency है, वो सब वहाँ से पता चलता है, right? So all of the work that you've done before this, your market research is going to help you a lot, right? Customer segment कौन है, mass market हो आप लोग, niche market हो, क्या हो, right? पहले sticky notes चिपकाओ, so it gives you a general idea first of what categories you fall under, and फिर और details में dive करने का.